the way our lifestyles have changed, ladies are smoking more, right? So cigarette smoke is one of the biggest cause of infection in the breast. The patients who come to us in the gynec OPDs come with the complaints of pain in the breasts. में 50 to 60% पेशेंट जो है वो ब्रेस्ट पेन का होता है। डॉक्टर मीनाक्षी, जब आपके पास ऐसे पेन का पेशेंट आता है तो आप कौन सा टेस्ट पहले उनको बोलते हैं? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट some doctors will advise, अच्छा आप मैमो करा लो डायरेक्टली जाके. Do you think that is right? Hello, I'm Dr. Kanchan Kaur, Senior Director for Breast Surgery at Medanta Hospital in Gurgaon. And I'm very happy that today for our conversation for this podcast, we have with us Dr. Meenakshi Shukla, who is a very senior practicing gynecologist in Gurgaon. So welcome to the show, Dr. Meenakshi. It's really lovely to have you on with us. Thank you, Dr. Kanchan. I'm Dr. Meenakshi Shukla, practicing as a senior consultant gynecologist and an infertility specialist for the past 35 years in Gurgaon. Thank you for having me over on this podcast. So this is great. I'm very excited about our conversation today, and I hope that the things we talk about, other than cancer, कैंसर को साइड पे रख के जो हम ब्रेस्ट के बारे में बात करेंगे, आई थिंक उससे बहुत जो लोगों के मन में एक डर होता है डॉक्टर के पास जाने का, वो कम होगा. तो डॉक्टर मीनाक्षी, नॉर्मली जब भी ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट कैंसर स्पेशलिस्ट या ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट के पास नहीं आता, वो आपके पास आता है, वो अपने जीपी के पास जाता है. तो सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम आपकी क्लिनिक में लड़कियां या लेडीज किस प्रॉब्लम को लेके सबसे ज्यादा आपके पास आती हैं? Usually, the patients who come to us in the gynec OPDs come with the complaints of pain in the breasts. Considering that this girl who comes to us with pain in the breast is neither pregnant nor lactating, how would you go about examining her, Dr. Kanchan? So, I'm glad आपने पेन की बात की, क्योंकि अगर हम दिन में जितने भी पेशेंट देखें उसमें 50 to 60% पेशेंट जो है वो ब्रेस्ट पेन का होता है. एंड कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ पेन जिनको कि हम समझ सकते हैं कि पेन है, एक तो प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड से पहले का दर्द जो ब्रेस्ट में है, या पेशेंट अगर प्रेग्नेंट है क्योंकि उसकी ब्रेस्ट में मिल्क ग्लैंड्स की स्वेलिंग है, या अगर पेशेंट ब्रेस्ट फीडिंग कर रही है. बट और भी बहुत कॉजेज होते हैं ब्रेस्ट पेन के. I just want to really kind of spread this message to everyone कि 90 to 99% of the time breast में पेन होना कैंसर का लक्षण नहीं होता. Majority of the times breast cancer is painless. So our clinic is full of women who have breast pain, but the person who has cancer is sitting at home because she doesn't have pain, right? So breast pain का commonest reason जो है वो आपकी breast आपके hormones को कैसे respond करती है वो होता है. इसीलिए प्री मेंस्ट्रुअल फेज में जब ब्रेस्ट के अंदर hormonal changes की वजह से swelling आती है तो लेडीज को ब्रेस्ट पेन होता है, जिसको हम साइक्लिकल मेस्टैल्जिया बोलते हैं. मतलब हर पीरियड साइकिल के साथ आपको पीरियड से बिल्कुल पहले ब्रेस्ट में हेवीनेस और पेन होती है. एंड आई एम श्योर वैसे पेशेंट सबसे ज्यादा आपके पास आते हैं. अब जैसे जैसे एज बढ़ती है और 35 के ऑनवर्ड्स, जब पेरीमीनोपॉज जिसको हम बोलते हैं, ऑल्दो 35 इज नॉट पेरीमीनोपॉज, बट द नेक्स्ट 10, 15, 20 इयर्स आपकी बॉडी में जो हार्मोनल चेंजेस आते हैं उसकी वजह से भी ब्रेस्ट में पेन और टेंडरनेस हो सकता है. Correct, और ये जनरली बीमारी की निशानी नहीं होती. Another cause of pain which is common is infection in the breast, right? I'm sure आप पेन के patients भी देखती होंगी जिनकी breast में redness है, Correct. infection के signs हैं. We call that mastitis. Mastitis, right. So mastitis, which is infection of the breast, could also be a common cause for pain. And I really want to point out here कि आजकल की ladies, because the way our lifestyles have changed, ladies are smoking more, right? So cigarette smoke is one of the biggest cause of infection in the breast in women who are not lactating. तो सबसे common cause breast infection का बेसिकली होता है जब आप दूध पिला रहे हो बच्चे को, आपने दूध ठीक से नहीं पिलाया, दूध ब्रेस्ट में जम गया और उसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन होगी. पर अगर आप दूध नहीं पिला रहे हो तो कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इन्फेक्शन एक्चुअली सिगरेट स्मोकिंग है इन द वेस्टर्न वर्ल्ड. That's right. Would that also include e-cigarettes? Yes, any form of cigarette that has nicotine, because उसमें क्या होता है कि मिल्क डक्ट्स जो हैं वो डायलेट हो जाते हैं, एंड डायलेटेड मिल्क डक्ट्स में आपकी नॉर्मल सिक्रीशंस पूल होती हैं जिसकी वजह से उनमें इन्फेक्शन होती है. ऑल्सो सम लेडीज आपने नोटिस किया होगा जिनकी निप्पल अंदर की तरफ होती है,
जिसको हम इन्वर्टेड निप्पल बोलते हैं, तो उसके अंदर डक्ट्स की फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल नहीं होती। जो मिल्क डक्ट्स हैं जो दूध को निप्पल तक लाती हैं, उनमें अगर सिक्रीशन जमा होनी शुरू हो जाए तो इन्वर्टेड निप्पल वाला पेशेंट या जिनकी डक्ट डायलेटेड है, जिसको हम डक्ट एक्टेजिया बोलते हैं, उनमें भी ब्रेस्ट इन्फेक्शन का रिस्क जो है वो बढ़ता है। तो डॉक्टर मीनाक्षी, जब आपके पास ऐसे पेन का पेशेंट आता है तो आप कौन सा टेस्ट पहले उनको बोलते हैं? बिकॉज अ लॉट ऑफ टाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट some doctors will advise अच्छा आप मैमो करा लो डायरेक्टली जाके. Do you think that is right though? I think I would like to give them a short course of antibiotics and anti-inflammatory. Watch for a week or so, let the symptoms subside, ask them to take hot or cold fermentations and observe them for some time, at least 4 to 7 days, and then think of any investigation further. So I think that's very right. अगर तो breast में redness है, which is a sign of infection, तो ideally if you can get a simple basic ultrasound, it is a good idea to do that. Why? क्योंकि अल्ट्रासाउंड में अगर अंदर पस बन रही है जिसको हम नीडल डाल के निकाल सकते हैं और उस पस को फिर कल्चर के लिए भेज सकते हैं टू फाइंड आउट विच काइंड ऑफ एंटीबायोटिक, तो दैट इज गुड. बट अगर पेशेंट टाइम पे आ गया है कि अभी स्किन में हल्की सी रेडनेस हुई थी, तो हम एक शॉर्ट कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक पेन किलर देके जब पेशेंट 3-4 दिन में थोड़ा सेटल होता है तो फिर टेस्ट की बात करते हैं. Right? Absolutely right, because if it is just simple redness, we can go in with a course of antibiotics, anti-inflammatories, and what you said absolutely correctly. If it's looking like angry looking like an abscess or something, then sure shot. Absolutely. Pus aspiration and a culture sensitivity. So पेन की बात तो हमने कर ली, और पेन का कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है. इन्फेक्शन की हम जैसे बात कर रहे हैं, इन्फेक्शन का डेफिनेट ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स का कोर्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी का कोर्स. पर यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात ज़रूर बोलना चाहूँगी कि एक बहुत रेयर फॉर्म ऑफ ब्रेस्ट कैंसर होता है जिसको हम इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं. उसके अंदर स्किन में रेडनेस है, और जैसे डॉक्टर मीनाक्षी कह रहे हैं, अगर आपकी गायनेकोलॉजिस्ट या जीपी ने आपको एंटीबायोटिक दिया और 5-6 दिन में वो सेटल नहीं हुआ, तो एक ऑन्को सर्जन या ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को मिलना बहुत जरूरी है. क्योंकि इन्फ्लेमेटरी ब्रेस्ट कैंसर मिमिक करता है नॉर्मल इन्फेक्शन को, और कई बार वो आपके जीपी से या गायनेकोलॉजिस्ट से मिस भी हो सकता है बिकॉज इट इज नॉट अ कॉमन कैंसर. सो पेन और इन्फेक्शन के लिए जनरली हम कोई बहुत ज्यादा टेस्टिंग नहीं करते. ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन होती है, ज्यादा से ज्यादा हम एक अल्ट्रासाउंड करते हैं. बट अगर आपकी एज 40 एंड अबव है तो हम लोग मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड करके कंफर्म कर लेते हैं कि कोई और वजह तो नहीं है कैंसर की, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि बहुत रेयरली कैंसर में भी पेन हो सकता है. सो ब्रेस्ट पेन, आई वांट टू रीइटरेट, मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट जो है हमारी क्लिनिक में डरा हुआ रोता हुआ आता है कि मुझे तो दर्द है, मुझे कुछ बन गया. सो आई वांट टू रीअश्योर वुमेन दैट ब्रेस्ट पेन का कोई डेफिनेट ट्रीटमेंट नहीं है. इसमें जैसे बॉडी में कहीं और दर्द हो तो आप सिकाई कीजिए, जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने कहा, हॉट फर्मेंटेशन बहुत हेल्प करता है. हेल्पफुल. ढंग की सपोर्ट अंडरगारमेंट पहनना, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो पेन किलर ले लो आप, क्या कहते हैं इसको, वोलिनी जेल या कोई भी रूटीन जैसे हम जेल या बाम लगाते हैं वो लगा लो, तो उससे पेन में आराम आता है. कभी भी कोई सिम्टम पहली बार हो तो डॉक्टर मीनाक्षी, आई थिंक यू अग्री विद मी कि सबसे पहले डॉक्टर गूगल और डॉक्टर व्हाट्सएप को नहीं पूछना है, आपको अपने डॉक्टर से जाके जरूर कंफर्म कराना है कि मुझे पेन क्यों है. और एक बार डॉक्टर आपको रीअश्योर कर दे तो प्लीज रीअश्योर हो जाइए, क्योंकि पेन का पेशेंट सबसे ज्यादा डॉक्टर्स के पास घूमता है, सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट्स कराता है, आराम ज्यादा किसी चीज से आता नहीं है. सो आई रियली वांट टू रीअश्योर पेशेंट्स ऑफ पेन. सो पेन और इन्फेक्शन की तो हमने बात कर ली. व्हाट इज द अदर कॉमन सिम्टम डॉक्टर मीनाक्षी जो आप देखती हैं? The other common symptom which I see in my OPD is when the patient comes with a complaint of feeling a lump in her breast. Okay? So, lump in the breast, अब देखिए हम सब लेडीज को बोलते हैं कि सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है. अपने हाथों से अपनी ब्रेस्ट का महीने में एक बार चेकअप करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड इफ यू वुड यू लाइक द ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टू बी? यस, सो दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन. अगर आपके पीरियड आते हैं तो पीरियड खत्म होने के कुछ दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद आप खुद को चेकअप कीजिए, क्योंकि उस टाइम पे आपकी ब्रेस्ट में स्वेलिंग नहीं होगी, तो दर्द कम होगा, तो सेल्फ एग्जामिनेशन ईजी है. सो हर लड़की को महीने में एक बार पीरियड खत्म होने के बाद अपनी ब्रेस्ट का चेक करना चाहिए. एंड जिनके पीरियड खत्म हो गए हैं, जो पोस्ट मीनोपॉजल हैं, वो 1 डे ऑफ द मंथ फिक्स कर लें, फर्स्ट मंडे, फर्स्ट संडे, जैसे भी, कि उनको खुद को चेक करना है.
एंड सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जैसे डॉक्टर मीनाक्षी ने लंप की बात की, आपको लंप कैसे पता लगेगा अगर आप खुद को चेक नहीं कर रहे हो। और जैसे हमने ये भी बात की है कि कैंसर के गांठ में दर्द ही नहीं होता, तो अगर आप खुद को चेक नहीं कर रहे हो तो आपको कैंसर की गांठ तो फील ही नहीं होगी। सो सेल्फ एग्जामिनेशन टू फील अ लंप, एंड in fact a lot of ladies who regularly self check come with even the tiniest of lumps which we are surprised कि उनको कैसे फील हुआ, you know। So अपने हाथ से अपनी ब्रेस्ट का चेकअप करना। और अगर भी कोई लेडी ब्रेस्ट लंप के साथ क्लिनिक में आती है, सो डॉक्टर मीनाक्षी, आई रियली वांट टू लेट द common person know and also the doctors who see the patient who are not breast specialists know कि पहला टेस्ट हमेशा फिजिकल एग्जामिनेशन बाय द डॉक्टर है। उसके बाद में अगर पेशेंट की एज 40 एंड अबव है तो मैमोग्राम एंड अल्ट्रासाउंड बोथ। अगर पेशेंट की एज 40 से कम है तो हम लंप के लिए मैमोग्राम नहीं कराते अनलेस द क्लिनिकल सस्पिशन इज ऑफ कैंसर or the ultrasound that we do suspects a cancer. Okay, correct. So physical examination followed by an ultrasound if you are less than 40, followed by a mammogram and an ultrasound if you are 40 and above. And अगर वो गांठ हमें देखने में ऐसी गांठ लग रही है कि हमें कंफर्म करने के लिए सुई जांच करनी है तो उसकी नीडल बायोप्सी होती है। So Dr. Meenakshi, I would really like for you to spread amongst your patients this important piece of information कि नीडल डालने से लंप में अगर वो कैंसर की गांठ है तो नीडल डालने से कैंसर नहीं फैलता। Absolutely correct. True cut biopsy of a lump does not cause the cancer to spread. And that is the most important test we do, क्योंकि जब तक हम नीडल बायोप्सी नहीं करेंगे, how will we confirm कि ये गांठ किस चीज की है? And it's absolutely ultrasound guided or mammography guided. Yes, exactly. And that's very important कि अगर किसी की ब्रेस्ट में गांठ है तो ब्लाइंड बायोप्सी नहीं करानी है। ट्रेन्ड रेडियोलॉजिस्ट होते हैं जिनको हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं, वो अल्ट्रासाउंड की नजर में या कई बार अर्ली अगर कोई बहुत छोटी गांठ है जो केवल मैमोग्राम पे दिख रही है तो मैमोग्राम की गाइडेंस में सुई उस गांठ में डाल के उसकी बायोप्सी करते हैं और फिर हम कंफर्म करते हैं कि ये क्या है। 80% ब्रेस्ट लम्प्स डॉक्टर मीनाक्षी, जैसे आपको पता है, जो हम देखते हैं वो कैंसर के नहीं होते। छोटी लड़कियों में 15 एज ऑनवर्ड्स फाइब्रो एडिनोमा नामक गांठें होती हैं जो कैंसर नहीं होती। एंड इन ओल्डर लेडीज वी सी वाटर लम्प्स व्हिच वी कॉल सिस्ट। एंड आई रियली वांट टू पॉइंट आउट हियर कि अगर आपकी ब्रेस्ट में पानी की गांठ है और वो अल्ट्रासाउंड कह रहा है कि ये नॉर्मल सिस्ट है, देन हम उसमें नीडल बायोप्सी नहीं करते। अल्ट्रासाउंड अलोन इज इनफ टू टेल अस दैट दिस इज अ सिस्ट एंड इसको नीडल बायोप्सी करने की जरूरत नहीं है। अल्ट्रासाउंड इज इनफ टू लेट अस नो वेदर इट्स अ वाटर सिस्ट or it's a fibroadenoma. So आपके पास जो लेडीज आती हैं, do you think that they are actually checking themselves regularly or not? Most of the women do not have this awareness कि हमें regular अपना breast checkup करना चाहिए. I think the main idea of sitting here today is making more and more girls out there aware of this very important feature of their lives, is to examine themselves every month, once a month, once in 2 months, whatever regularity they can maintain for their own good health. Yes, thank you. Yeah. That's such an important point. So आज हमने कैंसर को थोड़ा साइड पे रख के ब्रेस्ट पेन की बात की, जो कि कॉमनेस्ट सिम्टम है। एंड आई वांटेड टू रीअश्योर दैट मोस्ट ऑफ द टाइम्स पेन इज नॉट बिकॉज ऑफ कैंसर, बट अगर आपको पहली बार पेन हुई है तो अपने डॉक्टर के पास जाके जरूर चेक करा के कंफर्म कीजिए कि ये पेन क्यों है। एंड अगर आपकी पेन नॉर्मल एज रिलेटेड पेन है तो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज नो डेफिनेट ट्रीटमेंट फॉर इट। ऑल्सो हमने लम्प्स की बात की। सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है, महीने में एक बार अपने हाथ से चेक करना। अगर आपको ब्रेस्ट में कोई गांठ फील हो रही है तो प्लीज गो टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, गो टू योर जीपी, गो टू योर ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट, बट गो टू समबडी टू गेट योर सेल्फ चेक। करेक्ट टेस्ट्स कराना बहुत जरूरी है। आपको गांठ फील हुई, आपकी फ्रेंड ने कहा जाके अल्ट्रासाउंड करा लो और बीच में डॉक्टर बाईपास हो गया, दैट इज नॉट द राइट वे टू डू थिंग्स। एंड अगर ब्रेस्ट में गांठ है उसकी नीडल बायोप्सी होना जरूरी होता है टू कंफर्म व्हाई दैट इज देयर। बिफोर वी वाइंड अप, डॉक्टर कंचन, आई वुड आल्सो लाइक टू आस्क यू वन मोर क्वेश्चन। सम ऑफ द पेशेंट्स जो हमारे आते हैं गायनी ओपीडी में, दे आल्सो कंप्लेन ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द निपल्स। यस, What would you like to say I about think that? that's a very important thing. अगर हम नॉन कैंसरस की बात कर रहे हैं तो निपल से डिस्चार्ज होना
मोस्ट ऑफ द टाइम्स हार्मोनल या एज रिलेटेड होता है. वाइट, ग्रीन, येलो डिस्चार्ज जो दबाने पे आए वो नॉर्मल है, उसके लिए कोई टेस्ट भी कराने की जरूरत नहीं है. पर अगर बहुत ज्यादा मिल्क डिस्चार्ज आ रहा है और आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कर रहे, तो वो एक हार्मोन प्रोलैक्टिन है, उसके एलिवेटेड लेवल्स के करके हो सकता है. तो हम ब्लड में वो टेस्ट कराते हैं. कई बार अगर आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन या एंटासिड्स बहुत ले रहे हैं, Correct, उससे भी absolutely. मिल्क डिस्चार्ज आ सकता है. सिगरेट स्मोकर्स को निपल डिस्चार्ज आता है. बट अगर आपका निपल डिस्चार्ज पानी की तरह पतला है, खुद से आ रहा है या उसमें ब्लड है, तो वो नॉर्मल नहीं है. सो अगर खुद की एग्जामिनेशन पे आपको येलो, ग्रीन या व्हाइट डिस्चार्ज दिख रहा है, तो डॉक्टर के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, वो नॉर्मल होता है. बट अगर बहुत प्रोफ्यूज एक्स्ट्रा व्हाइट डिस्चार्ज है or your discharge is watery or blood stained, then Dr. Meenakshi, we follow the same process. If you're under 40, you get an ultrasound first. If you are 40 and above, you get a mammogram and an ultrasound, and then we diagnose the reason for the discharge. Would you also like to tell us the importance of family history in breast cancers? That is very important again. So although today's talk is mainly about non-cancers, Yeah. but जिनकी family history है, और family history का मतलब कि आपके फादर के साइड से या मदर के साइड से, सो भुआ, मासी, दादी, नानी, फादर, फर्स्ट कजिन्स, अगर इनको ब्रेस्ट, ओवरी, पैनक्रियाज या प्रोस्टेट के कैंसर्स आपकी फैमिली में हैं, तो आपका ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क ज्यादा हो सकता है. और ऐसे केसेस में तो आपको यंगर एज पे अपने डॉक्टर के पास जाके रेगुलर चेकअप्स कराना जरूरी है. सो इफ यू हैव अ फैमिली हिस्ट्री, प्लीज कॉन्टैक्ट योर ऑन्कोलॉजिस्ट और ब्रेस्ट सर्जन एंड अंडरस्टैंड कि आपका स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल क्या होना चाहिए. और सब लड़कियों को 18 years ऑनवर्ड्स सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन जरूर करनी चाहिए. सो आई होप दैट टुडे with our conversation, we have been able to spread the important message, and the most important message I think is self examination, self awareness. और अगर कोई problem हो तो please go to your gynae, your GP or your breast specialist. And Dr. Meenakshi, after she sees somebody and feels there is a breast related issue that needs to be looked after, you must go to a specialist and get yourself checked. Thank you so much, Dr. Meenakshi, for being with us today, and I hope that people will gain from this podcast. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Kanchan, for such an enlightening talk. I'm sure our viewers out there will gain a lot from the knowledge that we have shared here today. Thank you very much. Thank you. And in Thank you very much, Dr. Kanchan. Thank you. And in series 2 of the podcast, we will come together to talk about cancer, its diagnosis and its treatments. See you in the second episode. Thank you very much. Thank you.